Hello everyone. Today we are studying the second chapter of the textbook BEEHIVE, that is the sound of the music. This chapter is divided into two parts. The first is the Alvin Glennie listens to sound without hearing it. Here this chapter is about the Alvin Glennie, who is the multi-musician who listens to sound without hearing it. That means she is deaf but she listens by feeling it. So, before we start the chapter, let's see what it is all about. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far from deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Here, somebody have commented that when hears then understands everything, but she has the extraordinary quality that in spite of hearing she used to listen, she used to feel the sound, and then she expresses that, and that too very beautifully. So this motivational story inspires all of us to overcome our physical disabilities and achieve our dreams and goals. So, with this, let's begin with the chapter. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. So, this situation is of the underground train platform, which is crowded by the people over there. A slight girl looking younger than her 17 years. Slight hair means the small and thin girl who looks younger than 17 years was nervous, yes, yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. She is nervous but also excited as she is feeling the train is coming. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. So here we came to know that the girl who is the Evelyn Glennie, she is moving to London from Scotland. So now she is nervous also and excited also for that. And this is the first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough or any teenager fresh from Scottish farm. She is nervous. Daunting here means she is frightened, yeah, scared, because she is teenagers at the age where she is. वो 17 years से भी कम की है, तो that is the teenage. So, and especially she is from the Scotland. So she is very nervous, as we can see that London is the urban place and the Scotland is not that much far established, and there are so many farms and other activities, agriculture, so London is more famous. But his aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. So still she is traveling. द नर्वसनेस तो उसको वैसे ही है, लेकिन उसके लिए उससे भी ज़्यादा जो एक बड़ा चैलेंज है वो ये दैट शी इज़ डेफ. एक तो शी इज़ ट्रैवलिंग कर रही है वो, एक तो स्कॉटलैंड से लंदन, तो वो एक उसके लिए बड़ा चैलेंज है. लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज उसके लिए ये है कि शी इज़ डेफ, शी इज़ नर्वस कि वो वहाँ किस तरीके से सारी सिचुएशंस को हैंडल करेगी. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. जो उसके साथ ये जो प्रॉब्लम हुई कि धीरे धीरे उसके साथ, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. सो ये जो उसके साथ प्रॉब्लम थी ये स्टार्ट हुई व्हेन शी वॉज 8 years old, और उसकी मदर ने ये चीज़ नोटिस की कि उसको कुछ दिक्कत जो है उसको हो रही है. और वो टाइम था जब उसकी मदर ने उसको प्ले करने को बोला पियानो, बट शी डिडंट रिप्लाइड. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव. जब उसकी मदर ने उसका नाम, उसकी आवाज़ लगाई, लेकिन उसने ज़रा भी कोई हरकत नहीं दिखाई. दैट टाइम हर मदर रियलाइज दैट देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद हर. I suddenly realized she had not heard.
सो आई हेयर मीन्स द मदर ऑफ द एवलिन. सो शी इज सेइंग कि मुझे तब ये चीज़ का एहसास हुआ. Says Isabel Glennie. Isabel Glennie is the name of the Evelyn mother. So she says कि तब मुझे ये चीज़ का realize हुआ. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teacher. So for quite a while here means कुछ समय तक एवलिन जो थी वो कंसील कर पाई इस अपनी प्रॉब्लम को अपने फ्रेंड्स से एंड टीचर्स से. कंसील here means कि वो उनसे छुपा पाई. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. लेकिन धीरे धीरे करके जब वो 11 ईयर समथिंग पे हुई, हर मार्क्स हैड डेटोरिएटेड मीन्स कि वो जो सिचुएशन थी उसके साथ वो और ज़्यादा ख़राब हो गई. एंड देन दैट टाइम हेड मिनिस्ट्रेस हैज़ रिक्वेस्टेड, अर्ज हेयर मीन्स रिक्वेस्टेड हर पेरेंट्स कि वो किसी स्पेशलिस्ट को जाके उसको दिखाएं. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब उन लोगों को ये बात पता चली कि जो उसके साथ ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी है एंड उसकी जो नर्व है वो डैमेज हो चुकी है. जिस बिकॉज ऑफ दैट they were advised that she should be fitted with hearing aids. और उनको ये चीज़ के लिए एडवाइस किया गया कि उसको जो है फिट करना पड़ेगा उसके विद हियरिंग एड्स. aids here means hearing aids means we can say the machine or the equipment जो कि उसके ears में फिट किए जाते ताकि वो जो है हियर सुन पाती साउंड वगैरह को. सो उन लोगों ने डॉक्टर्स वगैरह ने स्पेशलिस्ट ने उसको एडवाइस की कि उनको हियरिंग एड्स जो थे वो फिट करवाने पड़ेंगे. एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ. एंड उसको जो है स्कूल में डेफ लोगों के साथ पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा. एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक सेज एवलिन कहती है कि ये जो जब उसे पता चला कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है तो उसकी लाइफ में ऐसा लगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म सी हो गई, एक अंधेरा सा आ गया उसकी लाइफ में. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन जिस तरीके की एवलिन जो थी डिटरमाइंड एंड उसने गिव अप करने का नहीं सोचा. सो इससे हमको ये पता चलता है कि एवलिन वॉज the kind of a person very determined. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उसने जो है आगे अपनी लाइफ को वैसे ही आगे बढ़ाया जैसे कि बाकी के नॉर्मल एंड फिट लोग जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं. एंड उसका जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक की तरफ उसको भी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को xylophone बजाते देखा एंड उसने भी डिसाइड किया कि वो भी xylophone बजाएगी. Xylophone is a musical instrument जहाँ पे बीच में वुडन बैंड पे स्ट्रिंग्स लगी होती हैं. एंड सो शी ऑल्सो डिसाइडेड कि वो चीज़ वो बजाएगी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर. लेकिन जो उसके टीचर्स थे उन्होंने उसको डिस्करेज किया कि वो नहीं बजा सकती क्योंकि जो उसकी हियरिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, वीक हो चुकी थी. बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब स्पॉटेड हर पोटेंशियल. लेकिन जो परक्यूनिस्ट जो थे, परक्यूनिस्ट मीन्स द पर्सन हु प्लेज द ड्रम, जो तबला ड्रम वगैरह बजाते हैं, दैट इज सेड टू बी एज द परक्यूनिस्ट. एक परक्यूनिस्ट से वो मिली जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स. उन्होंने उसके पोटेंशियल को जाना कि उसका जो इंटरेस्ट है, कैलिबर है म्यूज़िक के लिए और जितना वो कर रही है कि वो कर सकती है. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है एवलिन को म्यूज़िक बजाना सिखाएंगे. एंड उसके लिए उन्होंने ट्यून किए 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. अलग अलग नोट्स के 2 ड्रम्स को उन्होंने ट्यून किया
डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। अब उन्होंने उसको कहा कि तुम इसको, इन ड्रम्स को अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से इसको फील करने की, समझने की कोशिश करो। सेज एवलिन, तो एकदम से एवलिन बोलती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। सो एवलिन बताती है कि जैसे ही वो ड्रम बजे तो जो हायर ड्रम था, जो तेज बज रहा था, उसको फील होने लगा अबव द वेस्ट। वेस्ट अप मीन्स जो हायर वाला था वो जो कमर है, वेस्ट जो है उससे ऊपर के बॉडी के पार्ट्स में उसको हायर वाला ड्रम फील होने लगा, एंड जो वेस्ट डाउन, वेस्ट से जो नीचे वाला जो बॉडी का पोर्शन है वो उसको लोअर वाले ड्रम से उसको फील होने लगा। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब्स जो थे उसको बार बार वो चीज़ फील कराते थे, ये एक्सरसाइज से बार बार रिपीटेडली करवाते थे। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। एंड धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते उसको ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि वो अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से जो है साउंड्स को फील कर सकती है। And she says, I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. And वो बोलती है कि धीरे धीरे करके इस कोशिश को मैंने जब जारी रखा तो मैंने अपने माइंड से एंड प्लस अपनी बॉडी से अलग अलग साउंड्स एंड वाइब्रेशंस को फील करना स्टार्ट किया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। एंड बाकी जो चीज़ बचती है वो है डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। सो हेयर शी ऑल्सो सेज कि इफ़ समबडी लाइक डिटरमाइन हो जाए किसी काम को लेके एंड डू द हार्ड वर्क फॉर इट, ही और शी कैन ईजिली अचीव दैट। नेक्स्ट इज शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और तब से उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा किसी भी चीज़ को। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। एंड धीरे धीरे करके उसने अपने आप को, अपना हुनर, अपना वो और तेज़ी से बढ़ाया। एंड देन यूनाइटेड किंगडम में वो गई, वहाँ पे उसने टूर किया विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मीन्स द ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, व्हेन जब एक ग्रुप ऑफ लोग जब अलग अलग उसको म्यूजिक्स को या इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, दैट ग्रुप इज सेड टू बी एज द ऑर्केस्ट्रा। सो इतने इस टाइम को प्रैक्टिस को करते करते शी वॉज नाउ 16 ईयर्स, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। एंड उसने ये चीज़ तय कर ली थी कि अब उसको इसी फील्ड में, म्यूज़िक की फील्ड में ही आगे कुछ करना है। शी ऑडिशन फॉर the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. Auditioned means here like when we give the exams we get the marks. हम जब एग्ज़ाम्स देते हैं तो हमारे मार्क्स आते हैं, हमें पता चलता है कि हम फेल हुए या पास हुए। उसी तरीके से जो हमें कहीं पे एडमिशन लेना होता है तो हम उन परसेंटेज या मार्क्स के हिसाब से हमें एडमिशन मिलता है। तो सिमिलरली जब हमें म्यूज़िक की उसमें कॉलेज में या म्यूज़िक फील्ड में हमको कहीं कुछ एडमिशन वगैरह लेना होता है तो वहाँ पे हमारे जो है ऑडिशन होता है, जहाँ पे एक स्मॉल टेस्ट टाइप या परफॉर्मेंस टाइप होता है। सो दैट इज सेड टू बी एज द ऑडिशन। सो शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। सो उस अकेडमी की हिस्ट्री में उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। धीरे धीरे उसने जो था पहले ऑर्केस्ट्रल वर्क मीन्स ग्रुप में काम किया, देन शी मूव टू सोलो परफॉर्मेंसेस। सोलो मीन्स सिंगल। देन उसने धीरे धीरे करके अकेले परफॉर्मेंस देना शुरू किया। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। जब ये 3 साल का जो समय था उस अकेडमी के अंदर, जब वो तक वो ख़त्म हुआ, उसने जो है बहुत, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने बहुत बड़े जो अवार्ड्स थे उनको हासिल किया।
She has captured that, and for all this Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और उसने आज तक जितना भी किया उसने कभी भी उस चीज़ के लिए एक अपने आप को हीरोइक नहीं दिखाया ना समझा. And she says if you work hard and know where you are going you will get there. And वो ये कहती हैं कि अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है एंड अगर आप उसको करने के लिए हार्ड वर्क करते हो तो यू विल डेफिनेटली अचीव दैट. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, एंड वो भी अब टॉप तक पहुंच चुकी थी. द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. So now she was on the heights, on the top. वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मोस्ट sought after multi percussionist में से थी. So sought after means फेमस, या ये बोल सकते हैं हम सबसे ज़्यादा डिमांड में. विद अ मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको बहुत मास्टरी थी थाउजेंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में. एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. हैक्टिक मीन्स द बिजी, जो उसका शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक एंड द बिजी वन हो चुका था. शी वॉज सो फेमस आफ्टर दैट. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. और ये इंटीग्रुइंग हेयर मीन्स कि ये देखने के लिए लोग बहुत जो थे वो क्यूरियस हुआ करते थे कि किस तरीके से जो एवलिन है वो काम करती है एफर्टलेसली, बिना थके और अपने आप को वो भी बिना सुने किसी चीज़ को. इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. सो द राइटर हेयर सेज कि जब उसने उसके साथ एवलिन के साथ इंटरव्यू किया 2 घंटे के लिए तो उसने अपना एक भी वर्ड जो था वो मिस नहीं किया. मैन विद बुश, बस उसने एक बात बोली, मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल. शी लाफ्ड. हंसते हुए उसने एक बात बोली कि लेकिन उसको एक ही चीज़ से प्रॉब्लम होती है, वो है मैन विद बुशी बियर्ड. जब लोगों की जो मूछें होती हैं, बियर्ड जो होती है, दाढ़ी होती है, उससे वो उसको लिप्स नहीं दिखते मैन के, जिस वजह से वो नहीं समझ पाती कि ये जो है क्या बोलना चाह रहा है. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स. और वो कहती है कि खाली ये ऐसा ही नहीं है कि वो लिप्स को देख के ही सामने वाले की चीज़ बात को समझ पाए. इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज. वो कहती है पूरा फेस देख के वो चीज़ों को जाना जाता है एंड स्पेशली उन आँखों को. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट. वो जो है ये बात बोलती है फ्लॉलेसली, हेयर मीन्स बिना किसी मिस्टेक के, मतलब जो उनकी लैंग्वेज पे जो कमांड थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी. एंड लिल्ट, स्कॉटिश लिल्ट मीन्स द लैंग्वेज, द वे ऑफ स्पीकिंग. शी स्पीक्स द स्कॉट लैंग्वेज. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11. एंड वो बोलती हैं कि मेरी जो स्पीच है वो इतनी ज़्यादा क्लियर इसलिए है क्योंकि मैं 11 ईयर तक, जब तक मेरी हियरिंग पूरी तरह से गई नहीं, तब तक उन्होंने पढ़ाई अपनी की थी, सीखी थी. बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ वी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़. सो 11 तक उन्होंने स्कॉटिश तो पढ़ी थी, बट ये भी सोचने वाली बात है कि उसके बाद किस तरीके से उन्होंने फ्रेंच एंड जापनीज़ लैंग्वेज पढ़ी. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. So अगर वो म्यूज़िक की बात करें तो वो कहती हैं कि जो म्यूज़िक है वो उनकी हर बॉडी के हर पार्ट में है. वो कैसे भी किसी भी चीज़ को समझ के उसको पहचान जाती हैं. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. So she says it tingles. Tingles means कि एक तरीके की वाइब्रेशन या कोई चीज़ सेंसेशन टाइप होती है स्किन में. माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर. तो कहती हैं कि न खाली जब भी मैं किसी चीज़ को देखती हूँ या कुछ भी होता है तो मेरी स्किन में, मेरे चीक बोन्स में एंड मेरे हेयर्स में एक अलग तरीके से सेंसेशन सी होती है. व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन. और वो बताती हैं कि जब वो जाइलोफोन बजाती हैं, शी कैन सेंस द साउंड
passing up the stick into her fingertips. तो वो जो है उस जाइलोफोन में अपनी जो फिंगर की जो टिप्स होती हैं उससे उस साउंड को पहचानती हैं, समझती हैं बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स. और वो कहती हैं कि जब वो ड्रम्स बजाती हैं शी कैन फील द रेसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. तो वो कहती हैं कि जब वो ड्रम बजाती हैं तो जो रेसोनेंस होता है, जो उसका जो साउंड होता है, जो इको होता है, उसको वो अपनी बॉडी के अंदर फील कर पाती हैं. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. सो वो ये भी कहती है कि जब भी वो परफॉर्म करती हैं तो वो हमेशा वुडन प्लेटफॉर्म पे करती हैं. दैट मीन्स कि फ्लोरिंग जो होनी चाहिए वो वुडन फ्लोरिंग होनी चाहिए जिस पे वो अपने शूज़ को हटा देती हैं एंड जो वाइब्रेशंस पास होती हैं वो जो है धीरे धीरे करके उनके बेयर फीट, नंगे पैर से होते हुए अप हर लेग्स तक जाती है जिससे वो साउंड को समझ पाती हैं और बता पाती हैं. नॉट सरप्राइजिंगली Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. तो जो अब जो एवलिन हैं डिलाइट हर ऑडियंस, वो अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा खुश करती हैं. इन 1991 में उसको In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. So says master percussionist James Blades. तो जो ग्रुप ऑफ ऑर्केस्ट्रा के जो मेंबर जेम्स ब्लेड्स हैं वो ये कहते हैं कि 1991 में उनको एक अवार्ड मिला रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटी से, जो कि एक प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ईयर of the year का अवार्ड था. God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary. और वो कहते हैं कि भगवान ने उनसे भले ही ये सुनने की जो वो है वो ले ली, बट उन्हें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट के तौर पे उन्हें जो एक सेंस दिए हैं. वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं वो फील करती हैं फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. और इतने अच्छे से जिनसे अच्छा एक कोई हम में से भी नहीं कर सकता. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. इसी वजह से वो जो है म्यूज़िक को इतने अच्छे तरीके से उसको समझा पाती हैं. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians. So एवलिन जो है ये बात कहती हैं कि वो जो है वो वर्कaholic है. मीन्स वो अपने आप को काम करने से रोक नहीं सकती, उन्हें पूरा टाइम काम ही करना है. इवन हार्डर देन द क्लासिकल म्यूजिशियंस से भी ज़्यादा. बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस. लेकिन जो उसके बदले में उनको जो अब रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो इनॉर्मस होते हैं. मीन्स बहुत बड़े, ह्यूज काइंड ऑफ. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, जो उनके रेगुलर कॉन्सर्ट्स होते हैं उसके बावजूद, उसके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. तो वो इसके साथ साथ फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती हैं हॉस्पिटल्स एंड प्रिजन्स में. शी ऑल्सो गिव्स हायर प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. और छोटे बच्चों को जो म्यूज़िक सिखाने की जो क्लासेस हैं वो उसको भी बहुत प्रायोरिटी देती हैं. एंड रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज. सो जो एक बीटहोवन फंड के जो पर्सन हैं एन रिचलिन, वो ये बताते हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन. कि वो ना ही सिर्फ इस तरीके के फ्री कॉन्सर्ट्स बल्कि वो जो बच्चे जो उस फंड में या उस जगह पे हैं जो कि डेफ हैं उनकी भी लिए वो एक इंस्पिरेशन है. दे सी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो. और
उनसे ये समझ में आता है कि जो डेफ चिल्ड्रन है वो उनसे एवलिन से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं कि वो समझते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो कि वो नहीं कर सकते. एवलिन ग्लेनी has already accomplished more than most people twice her age. एवलिन ग्लेनी जो है वो ऑलरेडी इतना सब कुछ अकम्प्लिश कर चुकी हैं, मीन्स अचीव कर चुकी हैं कि इवन जो उसकी उम्र से जो ट्वाइस लो ईयर के जो लोग होते हैं वो भी अभी तक नहीं कर सकते. शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. और परक्यूशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर कोई आगे आया है या जो सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ है वो है आपका ऑर्केस्ट्रा. एंड इस चीज़ को उन्होंने इतना अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट किया है दैट इट कैन बी वेरी मूविंग कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप. और सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए नहीं, डेफ लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि इवन द हैंडीकैप लोगों के लिए भी शी हैज़ इंस्पायर्ड देम ऑल्सो, हु लुक टू हर एंड से, और जो कि उन्हें देख के ये कहते हैं कि इफ़ शी कैन डू इट आई कैन ऑल्सो. एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और न ही सिर्फ इतना बल्कि उन्होंने इनॉर्मस लोगों के लिए जो कि इनॉर्मस प्लेजर दिया है, उनको इतनी ज़्यादा खुशी दी है मिलियंस ऑफ लोगों को. सो थैंक यू. नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. Hello everyone. Today we are studying the second chapter of the textbook BEEHIVE, that is the sound of the music. This chapter is divided into two parts. The first is the Alvin Glennie listens to sound without hearing it. Here this chapter is about the Alvin Glennie, who is the multi